Hello guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. And if you are new to my channel, then please do subscribe it. As you know, we are covering Class 7th NCERT. So in today's lecture, we are going to start with first chapter of Class 7th, Hamara Rajasthan, named as Forest, Wildlife and its Conservation. When we talk about forest, one thing that comes in our mind is a large area of land full of trees and wild animals. That is forest for us. So, when we think about forest, wildlife exists in it and how we conserve it. These are the three things which we are going to study in this chapter. जब भी हम फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं हमें क्या लगता है फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, बहुत सारे ट्रीज होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे, जंगल. फॉरेस्ट इज jungle. So when we have a look at its definition, it is a large area of land covered with trees. A large area that is covered with trees. Forest is a habitat for variety of living beings, including plants, animals and microorganisms. Forest consists of both plants and animals. Several animals are present in forest. Different types of plants are present in forest. So about 10% of land area is covered by forest. In Rajasthan, 10% of its land area is covered by forest. Maximum forests in Rajasthan are present in districts named as Udaipur, Alwar, Pratapgarh, and minimum forest Churu, Hanumangarh, Jodhpur and Ganganagar. Maximum forests in Rajasthan are found in Udaipur, Alwar and Pratapgarh. Now, forests क्यों important है? Why forests are important to us? Forest is a valuable gift given to us by our nature. Nature ने हमें forest एक gift के रूप में दिया है, which consists of variety of wildlife, animals and plants which are used by humans for their survival. Now, humans modify them according to their needs. Now, they act as a source of livelihood. Trees and plants gives us air, as we require oxygen for our survival, which we get from plants. हमें oxygen कहाँ से मिलती है? Plants से. That's why plants are very important to us. Shelter to wildlife. Animals used to live in jungles. That is forest. It helps in rainfall and its products. Products like wood we use from trees are present in forest. Now elephant products, trunks, ivory, all of these things are used. The animal skin, all of these are used, which helps us economically. So forest is very important for us. Now, forest can be divided into three parts, which are protected forest, unclassified forest and reserve forest. First, we will talk about the protected forest. ये क्या होते हैं protected forest? They are the forest which are under government control, but under certain conditions, permission was given to them for cutting trees and grazing animals. In a protected forest, they comes under, ये किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और अंडर सर्टेन कुछ स्पेशल परमिशन के तहत यहाँ पे क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलाउड होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट, they also comes under government control, and this type of forest occupies more than 1/3 of the total forest area, and cutting of trees and grazing of animals is completely strictly banned. When we talk about two types of forest, protected forest and reserve forest, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी और रिजर्व फॉरेस्ट भी दोनों किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. बट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं उनके अंदर अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस परमिशन दे दी जाती है. आप ट्रीज काट सकते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स.
बट इस रिजर्व फॉरेस्ट में cutting of trees and grazing of animals is strictly banned. The last type is unclassified forest. It covers more than half of the total forest area. In this forest, no government restriction applies. ऐसा forest जिसके अंदर कोई government restrictions apply नहीं होती, जबकि protected forest में government restrictions होती हैं, but under certain conditions यहाँ पे allow कर दिया जाता है कि आप trees को काट सकते हो और animal grazing हो सकती है. But reserve forest के अंदर cutting of trees and grazing of animals is strictly banned. But अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, इसमें गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस यहाँ पे नहीं होते. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड एनिमल ग्रेजिंग. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट. After discussing about the classification of forest as protected forest, reserve forest and unclassified forest, now we are going to start with geographical classification of forest. When we talk about geographical classification of forest, the first type of forest that we are going to start is tropical thorny forest. Tropical thorny forest, they are found in arid and semi-arid regions of Rajasthan. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? राजस्थान की फॉरेस्ट जो राजस्थान में प्रेजेंट है. हमने पढ़ लिया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है हमारे पास, उदयपुर और प्रतापगढ़ में. नाउ अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट की, तो ये कैसे एरियाज में होता है जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड टेम्परेचर होता है. और कैसी प्लेसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, जालोर. दीज आर द रीजन्स जहां पर हमें क्या मिलेगा? थॉर्नी, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट. नाउ थॉर्नी ट्रीज एंड shrubs आर फाउंड इन these फॉरेस्ट. जीरोफाइट्स हमने सुना होगा आप लोगों ने जीरोफाइट्स के बारे में. ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पे डेजर्ट या स्नोई एरिया में पाए जाते हैं. इनके पास स्टोमेटाज होते हैं और ये क्या है, उसके अंदर वाटर जो होता है उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट. ये जीरोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं टेम्परेचर कहाँ पे रहने का, डेजर्ट में या ऐसे एरिया में जहां पर स्नोफॉल होता है, स्नो कवर्ड होती है. अब इन फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके के ट्रीज मिलेंगे? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकर, बीर, बबूल, खैर एंड नीम. दीज आर दी टाइप ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट. नाउ अब हम इसको हमने पढ़ लिया कि भाई ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट जो है ये कौन से रीजन में मिलते हैं, जीरोफाइट्स क्या हैं, किस तरीके की ट्रीज मिलती हैं, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं क्या होती है. सो इनमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, लेस एवोपरेशन एज द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर स्मॉल, द रूट्स पेनिट्रेट्स डीप अंडर द ग्राउंड टू गेट water. These are the characteristics of the tropical thorny forest. I hope it is clear now what is tropical thorny forest. The main thing that you should remember, in which area they found, what are their characteristics, what are xerophytes, main trees that are found in the particular type of forest. I ask you, what is the national tree of India? All of you can answer it is a banyan tree. But if I ask you the state tree of Rajasthan, only few of you can answer. The state tree of Rajasthan is खेजड़ी. खेजड़ी को क्या कहते हैं हम? स्टेट ट्री किसकी? राजस्थान की. नाउ खेजड़ी, its scientific name is Prosopis cineraria. Prosopis cineraria is the scientific name of khejdi, and khejdi is the state tree of Rajasthan. Now, this khejdi day is celebrated on 12th of September 1978. It has been started from 1978. It is known as Kalp Vruksh of Rajasthan. Khejdi को क्या हम बोलते हैं? Kalp Vruksh of Rajasthan. Maximum khejdi trees are found in a district of Rajasthan named as Nagaur. सबसे ज्यादा खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे राजस्थान में? नागौर में. A tree festival, इसी खेजड़ी पे a tree festival is also celebrated on this 12th of September. 12 सितंबर को एक ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है खेजाड़ी विलेज, जो कि किसके पास है? जोधपुर के पास है. वहां पर
एक ट्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ अमृता देवी, यू मस्ट बी सीइंग दिस नेम, हु इज शी, कौन है ये अमृता देवी? ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर है। ठीक है, हुआ क्या था 1970 के अंदर, सॉरी 1730 के अंदर क्या हुआ था, एक किंग था, उसने अपने सोल्जर्स भेजे और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि आप खेजड़ी के जो पेड़ हैं उन्हें कट डाउन कर दो। द किंग ऑर्डर्ड दैट यू हैव टू कट डाउन दी खेजड़ी ट्रीज। सो दिस लेडी अमृता देवी, she along with 363 Vishnois resisted the king from cutting down the खेजड़ी trees। इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया किंग का। किंग को कहा नो, वी आर नॉट अलाउइंग यू टू कट डाउन द खेजड़ी ट्रीज। शी along with 363 other members, they protested against the king, but what does the king did? He cut down the trees along with them. They just hugged down the trees and they were also being killed, and that's why she has been known in the history that how she tried to protect our wild life. She tried to protect the Khejdi trees. So in 1713, Khejari village near Jodhpur, 363 Vishnois, people led by brave women, resisted the cutting down of Khejdi trees by the king man, and they sacrificed their life for protecting Khejdi tree. What they did, they sacrificed their life that they are not letting them cut down the Khejdi trees. We have talked about the state tree of Rajasthan, which is named as Khejdi. Now we are going to study about the state flower of Rajasthan. What is the state flower of Rajasthan? It's Rohida. Rohida, its scientific name is Tecomella undulata. The scientific name of Rohida, Rohida is the state flower of Rajasthan, and national flower is lotus. Now Rohida, Tecomella undulata is its scientific name. State flower of Rajasthan, and it is found in Thar desert region of Rajasthan, especially in the Shekhawati areas. Rohida is found. Now there is one more term given in your NCERT. In this chapter we are completing your NCERT. So each and every term that I am teaching you is given in your NCERT. I am covering the entire NCERT. So सेवन, what is सेवन? सेवन एक तरीके की घास है, ये न्यूट्रिशनल घास है जो कि कहाँ पे मिलती है, जैसलमेर में। A nutritional grass that is found in Jaisalmer. So we are done with our state tree. Our state tree is Khejdi. Our state flower is Rohida. And what is seven? Seven is a nutritional grass that is found in Jaisalmer. So that's all for our first classification. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। इनको पॉपुलरली कहा जाता है मॉनसून फॉरेस्ट। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं वो अपनी लीव्स को शेड करती हैं ड्यूरिंग समर सीजन। समर के अंदर ये अपनी ट्रीज जो है वो लीव्स को शेड डाउन कर देती हैं। एरिया कौन कौन से हैं जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं? इंटायर हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, now this Banswara, Dungarpur, Udaipur, Ajmer, all these areas comes under tropical dry deciduous forest. Example है इसका mango, golar, etc. Now semi-tropical, our last geographical classification of forest is semi-tropical evergreen forest. These forests are always green, hence they are all called as evergreen forest. इन forest को evergreen इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा green रहते हैं। एरिया हिली रीजन ऑफ आबू, दैट इज माउंट आबू, सिरोही। एग्जाम्पल मैंगो, बैम्बू, टीक, these type of trees are found in this semi-tropical evergreen forest. So we are done with how the forest is being classified into three, that is protected, reserve and unclassified, and now we are done with its geographical classification into three. That's all for this forest. Now we are going to start with this wildlife. Wildlife sanctuaries. Now what is a wildlife sanctuary? Wildlife, animals भी आएंगे, plants भी आएंगे wildlife में.
नाउ द वर्ड सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? फियर फ्री फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जहां पे किसी को किसी का भय ना हो। सेंचुरी मीन्स अ फियर फ्री फॉरेस्ट। ये एक ऐसी जगह होती है जो हम क्रिएट करते हैं जहां पे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ जो है वो आराम से रह सकें। ठीक है, नाउ इट इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट सेफ। एक ऐसी जगह जहां पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये सेफली रह सकें। ठीक है, देयर आर 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। राजस्थान के अंदर टोटल 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑल दीज आर द सेंचुरीज व्हिच आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। सेंचुरी का खुद का ही मतलब ये होता है फियर फ्री फॉरेस्ट, जहां पे बिना भय के जो है वाइल्ड लाइफ जो है एनिमल्स हैं वो रह सकें। सो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर जो है वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे राजस्थान के अंदर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। पहली रणथंभौर, जो सबने सुनी होगी, सवाई माधोपुर में रणथंभौर इज वेरी फेमस फॉर टाइगर्स। लोग वहां पे क्या देखने जाते हैं? टाइगर देखने जाते हैं, रणथंभौर। उसके बाद सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? झालावाड़ कोटा के बीच में जो पहाड़ियां पड़ती हैं वहां पे मुकुंदरा हिल्स आती हैं, और वहां पे भी उसको भी क्या है, टाइगर को रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट की गई है। नाउ ये जो सरिस्का है, यहाँ पे क्या आती है? साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, बर्ड्स आती हैं, और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनके लिए क्या कौन सा नेशनल पार्क है? केवलादेव नेशनल पार्क एंड सांभर लेक। यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो है स्टेट ट्री क्या है? खेजड़ी। स्टेट फ्लावर क्या है? रोहिड़ा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमारा स्टेट एनिमल क्या है। तो हमारे स्टेट एनिमल्स की 2 कैटेगरी, एक तो वाइल्ड कैटेगरी और एक डोमेस्टिक कैटेगरी। तो वाइल्ड कैटेगरी के अंदर जाता है चिनकारा इंडियन गजेला, इज इट्स साइंटिफिक नेम, और डोमेस्टिक में जाता है कैमल, दैट इज कैमलस। ठीक है, ये याद रखना। स्टेट एनिमल जो है राजस्थान के, वाइल्ड में तो जाएगा चिनकारा और डोमेस्टिक में जाएगा हमारा कैमल। फिर उसके बाद आता है, जब हमने एनिमल की बात कर ली तो बर्ड की भी करनी पड़ेगी। बर्ड है हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। आई होप इट इज क्लियर दैट द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान खेजड़ी, स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान रोहिड़ा, स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान इन डोमेस्टिक camel, wild chinkara and domestic bird great Indian bustard। हमने पढ़ लिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? ऐसी जगह जहां पे हम क्या वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं बिना किसी फियर के। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? एन एरिया सेट असाइड बाय नेशनल गवर्नमेंट। ये नेशनल पार्क्स जो है इनको नेशनल गवर्नमेंट हमारी सेटअप करती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क्स हैं। पहला केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे हमारा भरतपुर में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर, यहाँ पे रणथंभौर में क्या होता है? टाइगर के लिए। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये जो है हमारा कोटा और झालावाड़ के बीच वाली हिल्स जो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और यहाँ पे भी क्या है, हम टाइगर को प्रिजर्व करते हैं। ये नेशनल पार्क्स हैं 3। नाउ हमने ये बात कर ली, फॉरेस्ट के बारे में बात कर ली, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर ली। अब हमें इसके प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन करना है। तो उसके लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 के अंदर, जिसको अमेंडमेंट हुआ 1988 के अंदर, और ये बोला गया कि टोटल लैंड का जो एरिया है उसमें से 33% लैंड के एरिया पे क्या होने चाहिए? फॉरेस्ट होने चाहिए। 33% एरिया ऑफ लैंड शुड बी ऑफ फॉरेस्ट। और राजस्थान के अंदर 2010 के अंदर ये आया कि आपके जो टोटल लैंड एरिया है राजस्थान का, उसमें 20% पे क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट। बट अभी भी राजस्थान में सिर्फ 10% लैंड एरिया ऐसा है जिसके ऊपर फॉरेस्ट है, जबकि हमारे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए पूरा हमें कितना फॉरेस्ट रिक्वायर्ड है? 20%। बट अभी भी हमारे राजस्थान में मात्र कितना परसेंट फॉरेस्ट है? 10%। अब इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने 2 एसोसिएशंस बनाई, AFRI एफ्री और CAZRI सेसरी। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अफ्री
Arid Forest Research Institute and Sisri Central Arid Zone Research Institute. अब ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूट्स थे ये गवर्नमेंट ने बना दिए हमारे जोधपुर के अंदर, और जोधपुर में बनाया गया ताकि हम क्या है जो वर्क कर सकें कि हम और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट का कैसे कर सकते हैं, रिसर्च ला सकें, अपनी वाइल्ड लाइफ को हम किस तरीके से और प्रोटेक्ट कर सकें, उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने ये दो इंस्टीट्यूट्स बना दिए। तो ये जो है हमारा यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, नेम्ड एज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया। फॉरेस्ट क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा लैंड जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रीज हो, वाइल्ड लाइफ हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में दोनों तरीके के होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। ये हमारा क्या था? फॉरेस्ट। फिर हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट का 3 में क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया। आफ्टर दैट हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ क्या होती है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा हमारा स्टेट ट्री क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, इस सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। I hope it is clear in your minds what I have taught you today. So that's all for our lecture today. If you like my video and content, then please do subscribe my channel. Thank you for watching.